and also and I'll begin with a very simple agenda that number one, suppose we have the common formulas like V is equal to U plus AT, we have S is equal to UT plus half AT square, we have V square is equal to U square plus 2AS. Now this consists of different variables V, U, S, T, A. Talking about each and every variable, distance and displacement are two different things. Distance is the actual path covered, displacement is the shortest distance. बराबर है. So if there is point A and there is point B, there can be infinite distances. This is one of the distance, this is one of the distance, this is one of the distance, this is one of the distance. There can be infinite distances, but there is only one displacement. That is a straight line from A to B. But now you are in 9th standard. They are not going to ask you write the difference between distance and displacement. So suppose one of my students bothered to ask me a very fine questions few years back. The student's question was as such that, sir, suppose this is my home and this is my school. Suppose this is the displacement I will like to take while going from home to school. Then she asked me, suppose sir, one day there is a wall built here. किसी ने एक दीवार बना दी यहाँ पर और अब मैं ये पाथ से नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मेरे पास में दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल है. मैं इधर जाऊंगी शर्मा जी के घर तक और वहां से राइट ले लूंगी और ये मेरा दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा. बराबर. सो शी आस्क्ड मी, सर, द डे द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी विच इज दिस वन had some barriers in between, will I call the new shortest path as displacement? You guys tell me. सोचने की I बात है. guess. I guess. You guess? Acha, can you also guess which type of questions can be formed from this concept? Assertion reason. Assertion reason kills you. A good question in assertion reason kills you. So this is the concept that perfectly describes कि assertion reason आ सकता है. So मैं question वापस repeat करता हूँ. कई बार बच्चों को question समझने में तकलीफ आती है. If there is a path, shortest path from the home to school, which is this one. But suppose this path that day had some barriers in between. इस पाथ में कुछ बैरियर्स थे बीच में. तो उस स्टूडेंट ने एक नया पाथ चूज किया, शर्मा जी के घर से राइट लिया, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ था स्कूल पहुंचने के लिए. अब वो बच्ची मुझसे पूछ रही है, सर कैन यू डिस्क्राइब मी कि क्या उस दिन मैं इस पाथ को विच वाज द अवेलेबल शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट बोल सकती हूँ. माय आंसर वाज नो. वी कैन नॉट हैव मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ समथिंग. बराबर है ना. We can only have one definition of something. We cannot have multiple definitions that generally displacement is the shortest distance, but if the shortest distance is not approachable, you can have a new displacement. That's not right, right? So physics does not care कि बीच में बैरियर है या बीच में बैरियर नहीं है. All physics cares is अगर A से B के बीच में एक straight line खींची है, then I'll call it displacement. So now when you are in 9th grade, you have to start looking the concepts like this. Suppose if I ask you that distance is equal to displacement, distance is greater than displacement, distance is greater than equal to displacement, and distance is less than displacement. Which is the most appropriate option? Hi, Vihan. Hello, Okay. sir. Hi, Vihan. You are also welcome to answer this. Tell me, Bhargavi. Yes, sir. B. Option B. Bhargavi says option B. Okay, let's see. I am sorry, I forgot your name, Sonam's sister. Shelly. Shelly, yeah. Shelly, what is your choice? B.
B. Shelly says B. What do you think, Vihan? Sir, B. Vihan says B. Okay, okay. Vihan says B. Okay, let's see. So, suppose this is point A and this is point B. Correct? Suppose a guy is traveling like this. ठीक है, इधर 2 मीटर्स, इधर 3 मीटर्स, इधर 2 मीटर्स, और ये डिस्टेंस है ए टू बी के बीच में 3 मीटर्स. ओके, सो इन दिस केस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 + 3 + 2 while displacement is equal to 3. So distance is equal to 5 + 2 7 while displacement is equal to 3. So yes, you guys are right. At this time distance is greater than displacement. But suppose A to B, from A to B, a person decides to move like this. From A to B, a person decides to move like this. At this time, this is 3 meters. What is the distance, guys? 3 meters. 3 meters. And what is the displacement, guys? 3 3 meters. meters. लफड़ा हो गया ना? Let us again try to decide the answer. Tell me, which is the best suitable answer? A and B both. Sir, So C. that means C, greater than equal to. Correct है? Yeah. Can this ever happen? Option D. Can this ever happen? No. No, sir. So again, this MCQ can be redirected as assertion reason. Take care. Correct है? ठीक है? Okay. So this was between distance and displacement. Now let us try to understand the difference between speed and velocity. Nothing big difference. This is just a magnitude, while this is a magnitude as well as direction. Frankly speaking, guys, to understand velocity in terms of direction, you really need to understand this chapter called vectors, which you'll be getting an opportunity to do so in 11th. Right now, I can only theoretically explain you that a directed change, there is a change and there is a directed change. So the directed change is known as velocity. If I say I covered 10 meters in 5 seconds, that will give me speed. But if I say that I covered 10 meters in northeast direction in 5 seconds, that will give me velocity. So one is a scalar quantity, one is a vector quantity. That's the basic difference between them. There is nothing to worry about both of these things. यहाँ पर है ना हम ग्राफ पढ़ेंगे ना तब सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा. This will be very simple job to do. Yeah. Hi Nikita, how are you? Hello, I'm good. Okay, so speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time, right? So I have a question. A body accelerates at 2 meter per second square for 10 seconds starting from rest. What is distance covered if speed after 10 seconds is 20 meter per second? एक body है which starts accelerating at 2 meter per second square. I'll give you a very strong advice while I'm teaching you this thing. Once now when you are in ninth, you have to start looking at the data with respect to units, not the words. I should be able to identify that this is acceleration by looking at its unit meter per second square, not by looking at the data which is given to me. I can identify 10 seconds as time because of seconds. I can identify this word called rest as u equal to 0. Correct है? अब बताओ
मुझे यहां पर डिस्टेंस निकालना है। सो कैन आई यूज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर माई स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस मुझे निकालना है एंड टाइम इज 10 सेकेंड्स, और यहां से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं 20 × 10, दैट इज 200 मीटर्स। कैन यू गाइज प्लीज एडवाइज मी इफ आई एम गोइंग राइट और रॉन्ग? Right. Okay, so you say right. What about you, Bhargavi? Vihan, Nikita, any opinion? I don't feel it's right. You don't think it's right, okay. I feel this. You feel that It it's is. right. That you It should is right. have a feeling in physics. Physics, word physica in Greek means feel. So yes, it's correct to have a feel in physics. But Nikita से opinion लेते हैं. Nikita, what do you think? क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ? It's right. It's right, It's okay. right. विहान, तेरा क्या ओपिनियन है मेरे भाई? Sir, it's correct. करेक्ट है। मेरे हिसाब से भार्गवी की फील मुझे भी आ रही है। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन, दोनों एक ही बात होती है। जब आपकी बॉडी एसिलरेट करती है ना, तब आपको इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना होता है। लेकिन जब आपकी बॉडी एसिलरेट नहीं कर रही, एक कांस्टेंट स्पीड में जा रही है, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, लेट्स जस्ट ट्राई टू चेक हाउ कंफर्टेबल आर यू विद ग्राफ्स। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं ऐसा, ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ए बी सी डी ई एफ। बताओ इस ग्राफ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला मैं कौन से पार्ट्स पे यूज कर सकता हूं? A to B ए to टू find बी, acceleration maybe. यस, ए टू बी में मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूं। यू आर राइट निकिता, क्योंकि यहां पर एसिलरेटेड मोशन है, बराबर है। यहां पर मैं यूज करूंगा काइनेमेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है उसका जुगाड़ मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। यहां मैं यूज करूंगा वन ऑफ द काइनेमेटिक्स इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनमें से कोई है, क्योंकि ये एसिलरेटेड मोशन है, बराबर है। लेकिन अगर मैं बीसी को देखूं, बीसी के टाइम पे कैन यू सी द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और डी के टाइम पे क्या आप देख सकते हो द वेलोसिटी इज स्टिल कांस्टेंट? तो आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द स्लोप बीसी एंड डीई। यहां पर एसिलरेशन हो रहा है तो मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूं। यहां पर डिसिलरेशन हो रहा है तो भी मैं यूज नहीं कर सकता हूं। अरे कैसे यूज करूं? यहां से लेकर यहां तक स्पीड चेंज होते जा रही है। अब मैं अगर स्पीड की वैल्यू डालना भी चाहूं तो कौन सी डालूं? आई डोंट नो दैट। So I definitely cannot use this one formula. This can be used here because इधर कोई भी पॉइंट को पकड़ो, at any time you see the velocity is same. It's not changing. I can use it here because at any time you see the velocity is same. It's not changing. Do you get me? Yeah. So this is this. Okay. So this formula is for I cannot use this thing. The how will I solve this question? वो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको. Right now this is a wrong statement. We cannot be directly using speed equal to distance upon time in this case. Okay. Okay. Now इस पर है ना आपको एक बहुत तगड़ा सोल्यूशन भी दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट्स नोन एज एवरेज वेलोसिटी। अब एकदम हार्डकोर एग्जाम की प्रिपरेशन चालू हो गई है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और उसके लिए क्या जुगाड़ करना है मैं सब बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट नोटिंग एवरीथिंग डाउन, बी वेरी एक्यूरेट। आई विल बी शेयरिंग दिस वीडियो वेरी सून, बट yeah, average velocity is known as
देखो कभी भी एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना, दिमाग लगाना ही मत। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देना। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी है। देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस जिसमें आपको एवरेज वेलोसिटी 0 मिलेगी, बट एवरेज स्पीड will not be equal to 0. Many questions. Jugaad. How do you identify a question where average velocity is 0? Every question in which final and initial position of the body is same. Initial position is equal to final position. For example, एक ट्रेन A to B गई, B to A आई, एवरेज वेलोसिटी 0। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल को ऊपर फेंका, वापस मेरे हाथ में आई, एवरेज वेलोसिटी 0। बिकॉज इन सब केसेस में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, राइट। इफ यू आर रिटर्निंग बैक टू इनिशियल पोजीशन, दैट मींस देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द फाइनल पोजीशन, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट बिकम 0, राइट। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के आपको दो क्वेश्चंस आएंगे। मैं दोनों क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको बाकी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, जिसमें आपके पास में डिस्टेंस सेम होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा आएगा जिसमें आपके पास में टाइम सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस सेम वाला क्वेश्चन, इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू ए एट 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इफ अ बॉडी मूव्स with 60 kilometer per hour for first 10 seconds and with 80 kilometer per hour for next 10 seconds। दोनों ही केस में फाइंड एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में हम लोगों को दिया हुआ है कि बॉडी ए टू बी और बी टू ए जा रही है, मतलब दो अलग अलग मोशन के लिए डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ए टू बी उतना ही दूर होना जितना बी टू ए दूर है, ठीक है। यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है कि बॉडी फर्स्ट 10 सेकेंड्स ये स्पीड फॉलो कर रही है और दूसरा 10 सेकेंड्स ये स्पीड, मतलब टाइम सेम दिया हुआ है दोनों अलग अलग मोशन का, ठीक है। अच्छा फर्स्ट केस में बताओ, ए टू बी जाने के लिए और बी टू ए आने के लिए क्या टाइम सेम होगा? नहीं होगा, बराबर है, क्योंकि आप सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पे कवर कर रहे हो। हाँ, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए बताओ, क्या 10 सेकेंड में बॉडी ए सेम डिस्टेंस कवर करेगी विद 60 किलोमीटर पर आवर दैट इट विल कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स विद 80 किलोमीटर पर आवर? नो, सो द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी डिफरेंट बट द टाइम इज गोइंग टू बी सेम। जुगाड़ टाइम। इधर आप लोग डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। This is a right format. This formula is there in your textbook. If you apply this formula directly, you will be getting marks. You don't need to show any steps. Don't worry about that. I guarantee. ठीक है। और इस जगह पर हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है। अब मैं आप लोगों को चॉइस देता हूं। आई कैन शो यू डेरिवेशन ऑफ बोथ द फॉर्मूलाज, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल शो यू द डेरिवेशन, otherwise we can move ahead। You want me to show you the derivation or can we move ahead? आप में से कोई भी बोलेगा अगर डेरिवेशन दिखाना है मैं दिखाऊंगा। आप तो इतना सोच रहे हो, बिग बॉस पे पूछ लिया आपको एक क्वेश्चन, यार बताओ हाँ या ना, आगे बढ़ते फिर। You can show the derivation. आई कैन शो द डेरिवेशन, ओके। सो फर्स्ट वाले का डेरिवेशन दिखाता हूँ, ठीक है।
नाउ द बॉडी इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी के बीच का ना काम करते डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स। ओके, एज आई सेड हमेशा हम लोग फॉर्मूला से शुरू करेंगे। सो द फॉर्मूला सेज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट है। सो टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस एक्स, ए टू बी एंड बी टू ए, डू यू अग्री विथ मी। और टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2, डू यू अग्री विथ मी। जब ए टू बी गया, ठीक है, तब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? हाँ, क्योंकि उसने ए टू बी पूरा जर्नी एक सेम स्पीड पे कवर किया, उसका एसिलरेशन नहीं हो रहा था, सेम स्पीड पे। हमने अभी भी देखा है, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। सो यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली बी टू ए आने में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इक्वेशन वन से क्या मैं लिख सकता हूं? टी1 की जगह पर पहले तो x प्लस एक्स 2x लिख दिया। क्या मैं टी1 की जगह पर लिख सकता हूं x बाय v1? मैथ्स मैथ्स, है ना, इधर से दिख रहा है ना मुझे, टी1 इज इक्वल टू एक्स बाय वी1, करेक्ट है ना। अब बताओ क्या मैं टी2 की जगह पर लिख सकता हूं x बाय वी2? सही है, ठीक है। तो हो जाएगा 2x अपॉन x कॉमन ले लिया, 1/v1 प्लस 1/v2, सही बात है। ये x और x कट गया, तो 2 इसमें मैंने एलसीएम लगा दिया कॉमन डिनोमिनेटर के लिए। सो v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या किया इसमें मैंने? ये वाला वो लगा दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। इधर तक सब साथ हो ना मेरे, समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ चलो, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठड़े, द फॉर्मूला डेरिवेशन, ओके, सही है, ठीक है। चलो, मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं, सेम कॉन्सेप्ट यूज करो, स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट t1 टाइम में, फर्स्ट t टाइम में बॉडी की वेलोसिटी थी v1, नेक्स्ट t टाइम में बॉडी की वेलोसिटी थी v2। सेम फॉर्मूला यूज करो। इस बार आपके पास डिस्टेंस नहीं है, पिछली बार डिस्टेंस को वेरिएबल मान लिया था, इस बार टाइम को वेरिएबल मान रहे t। पहला स्टेप टैली करते हैं अपन लोग, सेम कर रहे हैं या नहीं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस में ले लेता हूं d1 प्लस d2, क्योंकि मुझे डिस्टेंस का आइडिया नहीं है, ठीक है। क्या मैं टोटल टाइम की जगह लिख सकता हूँ t प्लस टी, बिकॉज दोनों जर्नी का टाइम तो सेम है ना, फर्स्ट 10 सेकेंड्स नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, फर्स्ट टी टाइम नेक्स्ट टी टाइम। सो ये हो जाएगा d1 प्लस d2 अपॉन 2t। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ है ना? चलो अभी d1 को निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो d1 इक्वल टू v1 इंटू टी। वैसे ही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टी तो सेम ही है, तो d2 विल बी इक्वल टू v2 इंटू टी। सो d1 की जगह पर लिख दिया v1 टी,
d2 की जगह पर लिख दिया v2t, नीचे पहले से था 2t, ऊपर से t को ले लिया कॉमन, नीचे था 2t, टी कट गया, क्या बचा, ठड़े। सही है। तो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लोगे, 2 मार्क फ्री के है ये। एक क्वेश्चन पक्का आने वाले कल की एग्जाम में। नहीं आया डायरी में लिख दूंगा तुम सबको, आया तो तुम लोग मुझे दे देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा जुगाड़ नंबर 1। अब मैं तुम्हें समझाता हूं द उत्सव टेक्निक। माइंड ब्लोइंग टेक्निक। तुम्हारे पास में 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशन है, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। अब अगर आप देखो, आपके काइनेमेटिक इक्वेशंस में टोटल 5 वेरिएबल है। पहला वेरिएबल है इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा वेरिएबल है फाइनल वेलोसिटी, तीसरा वेरिएबल है टाइम, चौथा वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा वेरिएबल है एक्सीलरेशन। मीट उत्सव। ठीक है। हर एक इक्वेशन देखो, हर एक इक्वेशन सिर्फ 4 ही वेरिएबल से बनी हुई है। जैसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। दूसरी वाली इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल नहीं है, फाइनल वेलोसिटी। और तीसरे वाले इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल नहीं है, टाइम। सही बात है। अच्छा, एक इक्वेशन है जिसमें 4 वेरिएबल है, ठीक है। उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब उसमें से कोई एक वेरिएबल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपको मिनिमम 3 वेरिएबल तो देना चाहिए ना। सही है। तो दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। फाइंड 3 गिवन वेरिएबल्स बाय क्वेश्चन। 3 वेरिएबल देगा ही देगा, उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। देर इज नो अदर वे यू कैन मूव फॉरवर्ड, दे हैव टू गिव यू 3 वेरिएबल्स एटलीस्ट। डू यू गेट इट ऑल ऑफ यू? पहला स्टेप है 3 वेरिएबल निकालो। अब वेरिएबल देने के तरीके थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ये एक वेरिएबल है, u इक्वल टू 0। दूसरा वेरिएबल आपको बोल दिया दैट अ बॉल इज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड्स, मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0, और टाइम दे दिया 2 सेकेंड्स। ऐसे थोड़े ट्रिकी पैटर्न में आपको कैसे भी करके 3 वेरिएबल निकालने हैं। ठीक है। सो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, फाइंड वेरिएबल टू फाइंड। चौथा वेरिएबल वो निकालो जो आपको क्वेश्चन में निकालना है। क्वेश्चन है ना यार, कुछ निकालने भी बोलेगा ना, कि खाली आपको गिवन ही देगा। टू फाइंड भी बोलेगा ना कुछ, तो जो फाइंड करना है वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है। अब आपके पास में फर्स्ट स्टेप से आ गए 3 वेरिएबल, अगले स्टेप से आ गए 1 वेरिएबल। आपके पास टोटल कितने वेरिएबल आ गए, 4। होते कितने वेरिएबल है, 5। उत्सव मतलब एक वेरिएबल आपको ना दिया है ना पूछा है, बराबर है। और वही वेरिएबल आपको बताएगा कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना है। समझ मेरी बात को? जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 5 seconds achieves velocity 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्सीलरेशन। अब ये टर्म आ गया एक्सीलरेशन, मतलब समझ में आ गया काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना। बताओ इसमें 3 गिवन क्या क्या है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से पता चल गया u 0 है। अचीव्स वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड।
और टाइम दिया हुआ है, देखो यहाँ पर टाइम लिखा नहीं है दैट 5 सेकेंड्स इज टाइम, बट सेकेंड्स देख के मुझे समझ गया ना टाइम है। ऑलवेज गो विथ यूनिट, डू नॉट रिलाई ऑन वर्ड्स, वर्ड्स कैन किल यू, फिजिक्स कैन नेवर किल यू। ये इंग्लिश है जो परेशान कर रही है, फिजिक्स तो सही है यार। फिजिक्स की प्रॉब्लम थोड़ी ना हमको कभी। फादर्स एज इज ट्वाइस द मदर्स एज, क्या है। ठीक है। सो दिस 5 सेकेंड्स, तो टी दिया हुआ है मुझे 5 सेकेंड्स। और मुझसे पूछा क्या, एसिलरेशन पूछा है। बताओ क्या ना दिया है ना पूछा है। पर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड विहान, डिस्प्लेसमेंट। बताओ कौन सा इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। इसको यूज करेंगे हम लोग। दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई विच इक्वेशन टू यूज। मस्त जुगाड़, ऑलवेज वर्क्स, नेवर फेल्स। सो यहाँ पर आई विल बी यूजिंग बिना सोचे समझे v इक्वल टू यू प्लस 80। नाउ v की वैल्यू इज 20, u की वैल्यू इज 0, a की वैल्यू टू फाइंड एंड t की वैल्यू इज 5, सो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप समझे मेरी बात। ठीक है। अब मैं चाहता हूं आप लोग अपनी अपनी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक खोलो एक बार। So we can use acceleration formula in this. सॉरी, हाँ यू कैन। काइनेमेटिक We- का फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर्मूला ऑफ एसिलरेशन ओनली मेरी बच्ची। एसिलरेशन का फॉर्मूला इज v माइनस यू बाई टी, राइट। टी को इधर ले जाओ, सो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, राइट। यू को इधर ले जाओ, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वन एंड द सेम थिंग बोथ। Dude, I was trying to find my physics का textbook यार। Hey, I have. One second now. Yes, I have motion in one dimension. Yes, I have it. देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम इसको यूज करके, ठीक है। जैसे कि लेट मी ट्राई टू सॉल्व, ये करते हैं चलो। फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग सब। दिस फोर्थ वाला क्वेश्चन। A body initially at rest, u equal to 0, starts moving with a constant acceleration, a equal to 2 meter per second square. Calculate the velocity in 5 seconds. देखो ये टाइम दिया नहीं है लेकिन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया t कितना है। 5 सेकेंड्स निकालना क्या है मुझे, v निकालना है। बताओ कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। s ना दिया है ना पूछा है, फर्स्ट वाला लगाओ, दिमाग मत लगाओ। आगे देखेंगे। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला। अब बुलेट इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी, मतलब u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब क्या है, v इज 0 आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ, तो s दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर मेरे बच्चों। 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर्स। सही है। अब बताओ कैलकुलेट द रिटार्डेशन, r निकालना है मुझे, क्या करूं। क्या ना दिया है ना पूछा है पहले वो बताओ। टाइम। टाइम। Yeah. तो अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है देखो। थर्ड वाला। थर्ड वाला। ये देखो, थर्ड वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग इस टाइम पे। लेट्स ट्राई टू यूज थर्ड वाला इक्वेशन। सो आई हैव वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। आई एम सॉल्विंग फॉर दिस क्वेश्चन ना गाइस। सो आई हैव 0 इक्वल्स 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s, where s is 0.1. So what happens? 20 square upon 2 into 0.1 is equal to s, is equal to acceleration, and that too in negative. नेगेटिव हटा दूंगा तो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन बन जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा इस टेक्निक से, हर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो बताओ अगला क्वेश्चन, बच्चों तुम लोग बताओ। फटाफट बताओ इसका आंसर, ओरली ओरली ओरली, डोंट टच पेन, डोंट टच पेन, अभी किया अपन ने, कम ऑन गाइस। कौन सा वाला है, सेम डिस्टेंस या सेम टाइम।
सर सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस। विहान फॉर्मूला बता दे भाई, खुश हो जाएगा, मेरा संडे बन जाएगा। सर 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। Yes, yes, yes. So the answer is 2 into 60 into 80 upon 60 plus 80. Now this is some maths we can do orally, right? चलो, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये सब बोरिंग हो गए हैं अभी। लेट्स डू लेट्स डू यू नो ना हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने वाला, है ना? अ बॉडी is moving with a constant acceleration, travels distance 3 meter and 8 meter in 1 second and 2 seconds. जब ऐसा डाटा देता है ना, तब समझ जाना साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएगा। ये दोनों का एक डाटा है, और सॉरी सॉरी, ये 3 मीटर्स एंड 2 मीटर, वन सेकेंड वाला एक डाटा है, और 8 मीटर्स एंड 2 सेकेंड्स वाला एक डाटा है। मतलब अगर एक केस के लिए मैं गिवन निकालना चाहूं कि जब डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर्स, तब हमारे पास में टाइम लगा है 1 सेकेंड, और जब डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर्स, तब हमारे पास में टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, मुझे हर एक केस में गिवन कितने हैं, 2, होने कितने चाहिए, 3। तो मैथ्स ये बोलता है कि अगर आपको 4 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना है, तो कम से कम 3 वेरिएबल तो पता होना चाहिए ना। लेकिन अगर 2 ही वेरिएबल पता है, लेकिन 2 वेरिएबल 2 बार पता है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, है ना? अच्छा चलो बताओ, इसमें पूछा क्या है मुझसे, पूछा इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है? एक्सीलरेशन कितना है और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, बताओ क्या ना दिया है ना पूछा है। फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बराबर है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस A plus हाफ ए टी स्क्वायर। सो फर्स्ट वाले गिवन के लिए यूज करते हैं, 3 is equal to u इंटू 1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 1 स्क्वायर। सेम इक्वेशन को दूसरे वाले के लिए यूज करते हैं, तो बन जाएगा 8 is equal to u इंटू 2 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2 स्क्वायर। सो इक्वेशन 1 कैसा दिखेगा, 3 is equal to u प्लस a/2, और इक्वेशन 2 दिखेगा 8 is equal to 2u प्लस ये 2 से 2 गया प्लस 2a, तो हो जाएगा 4 is equal to u प्लस a। 2 को कॉमन लेके काट दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व होने लायक है या नहीं है? 3 वेरिएबल नहीं दिए, लेकिन 2 वेरिएबल 2 बार दे दिए। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन से क्वेश्चन में हमको बनाना है साइमल्टेनियस इक्वेशन, जब 2 वेरिएबल, दोनों सेम वेरिएबल, 2 अलग अलग केस के लिए 2 बार दे दिए हो, ठीक है? So this is this. Then let me come to the last topic for the day, that is graphs. I hope you are taking some profit out of this lecture, huh? Let's talk about graphs. Graphs. Now, first, let me just summarize the number of graphs that you have. So you have displacement time graph, you have velocity time graph, you have acceleration time graph, okay? हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टोटल 3 टाइप के हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ टोटल 3 टाइप के हैं, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ सिर्फ एक ही टाइप का है, वो भी फालतू है, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। 3 चीज हो सकती है बॉडी के साथ में, मोशन जो होते हैं ना बॉडी के, वो 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नो मोशन, फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट्स जो जीरो को भी क्रेडिबिलिटी देता है। फिजिक्स में नो मोशन इज ऑल्सो नोन एज मोशन। फिजिक्स बोलता है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर ट्रेन में बैठे हुए सामने वाले व्यक्ति को आप रेस्ट पर देख रहे हो, तो बाहर स्टेशन पे खड़े हुए लोग उसको मोशन में देख रहे हैं। सो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तू धरती पर भी खड़ा है, बोल रहा है अरे मैं तो स्टैचू बन के खड़ा हूं, मैं तो हिल ही नहीं रहा हूं,
तो स्पेस में एक आदमी बैठा है जो तुझे धरती के साथ साथ गोल गोल घूमते हुए देख रहा है. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. फिजिक्स हैज हाई वैल्यू फॉर जीरो. फिजिक्स में देयर इज नथिंग कॉल्ड जीरो. जीरो इज ऑल्सो अ वैल्यू. ठीक है. सो यहाँ पर देर इज वन टाइप ऑफ मोशन विच कैन बी नोन एज नो मोशन. देन द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन. Uniform motion. And then third type of motion is accelerated motion. Now, accelerated motion are also of two types. Uniform acceleration, sorry for the spellings, huh? And non-uniform acceleration. और हमें यही तीन चीजें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बनाते एस टी ग्राफ. ये एग्जाम्पल मैं यहीं पर ही देता हूं ताकि आप लोग ऊपर वाले कंटेंट से रिलेट कर पाओ. एस टी ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले किस मोशन के लिए? नो मोशन के लिए. अगर मोशन नहीं हो रहा तो क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा? नहीं होगा. मोशन ही नहीं हो रहा है, बॉडी अपनी जगह पर ही खड़ी है. मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी का? कांस्टेंट. डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है. सही है. जब कोई चीज का कांस्टेंट ग्राफ बनाना होता है ना, कि जैसे मुझे बनाना है डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, तो मैं डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस पे कहीं पर भी एक पॉइंट मानूंगा और टाइम चाहे जितना भी आगे चला जाए हर पॉइंट उसी लाइन में मानूंगा और उन पॉइंट्स के कलेक्शन का एक ग्राफ बना दूंगा कि मेरा टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना ही है. टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट इतना ही है. टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट इतना ही है. डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा. अगर मुझे एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें टाइम ही रुक गया, टाइम ही चेंज नहीं हो रहा, तो मैं वो ग्राफ बनाऊंगा ऐसे, टाइम की एक्सिस के पैरेलल, टाइम की एक्सिस से पैरेलल. इस ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है दैट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, विच इज वेरी डम. यू कैन नॉट हैव दैट, राइट? सही है. सो दिस इज द ग्राफ फॉर नो मोशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, सो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. ऑसम. देन आई हैव ग्राफ नंबर सर 2. हाँ जी. सर नो मोशन मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट भी बोल सकते हैं. यस यस, नो मोशन मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. करेक्ट बोल रही है तो 100%. मैं बोल रहा हूँ ग्राफ डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट ये टर्मिनोलॉजीज है. अननेसेसरी इंग्लिश आपकी फिजिक्स खराब कर रही है. सो यू जस्ट ट्राई टू नो नैरो डाउन द टॉपिक्स ना, कि इतने मोशन मैंने सुना हुआ है, हर एक मोशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं भाई, है ना. सो सी, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब बॉडी मूव तो कर रही है ना, बॉडी मूव तो कर रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है. ठीक है. और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही. एसिलरेशन ये टर्म हमने बनाया था क्यों? ताकि हम वेलोसिटी का चेंज जस्टिफाई कर सके. एसिलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब अगर किसी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो क्या मैं बोल सकता हूं एसिलरेशन इज जीरो? सही बात है. ठीक है. इस जगह पर देखो, यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन को देखो. यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन में क्या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी इज कांस्टेंट? नहीं, क्योंकि एसिलरेशन हो रहा है ना, सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं होगा. लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म एसिलरेशन है तो मैं बोल सकता हूं बॉडी के पास एसिलरेशन है, लेकिन वो एसिलरेशन कांस्टेंट है. एसिलरेशन चेंज नहीं हो रहा कि फर्स्ट 1 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वैसा चेंज नहीं हो रहा है. एसिलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है. वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी पर सेकेंड सेम अमाउंट से बढ़ रही है, हर सेकेंड में सेम अमाउंट से बढ़ रही है. जैसे इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं एक डाटा टेबल बनाऊं, तो टाइम इक्वल टू 0 1 2 3 4 5,
और इस जगह पर वेलोसिटी देखो 2 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। अगली बताओ कितनी होगी? 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही वेलोसिटी बना दूं 2 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद में 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद में 22 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 48 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद 82 मीटर पर सेकेंड, ये वाला ग्राफ है इसके लिए और ये वाला ग्राफ है इसके लिए। दोनों ही जगह पर आप देख सकते हो वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी सेम अमाउंट से चेंज हो रही है पर सेकेंड, और यहां पर वेलोसिटी अलग अलग अमाउंट से चेंज हो रही है पर सेकेंड, एज यू कैन सी। डू यू गेट मी ऑल ऑफ यू? करेक्ट है ना? ठीक है, सो ये दो इसके ग्राफ हो जाते हैं। चलो एस टी ग्राफ बना लिया फर्स्ट वाले मोशन के लिए। अगला यूनिफॉर्म मोशन के लिए एस टी ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ये एस और ये टी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एस टी ग्राफ बनाना है तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन और नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया, एक स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, बराबर है ना? ऐसा ग्राफ जिसका चेंज कांस्टेंट है, जैसे कि इस ग्राफ में मैंने दिखाया कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है लेकिन वो चेंज कांस्टेंट है, पर सेकेंड सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है, उस ग्राफ को हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये एक ग्राफ है, इसमें एक ये है ए और एक है बी। ठीक है, ये समझो y है और ये x है। बताओ ए और बी में किसका चेंज ज्यादा है, y का या x का? x के रिस्पेक्ट में y किस ग्राफ में ज्यादा फास्ट चेंज हो रहा है? इन विच ग्राफ y इज चेंजिंग फास्टर देन द अदर? A. ए, है ना? हाउ डिड यू जज दिस? द फीचर ऑफ ग्राफ which represents change is this. This is known as slope. What is this known as? Slope. सो वो फीचर ग्राफ का जो चेंज रिप्रेजेंट करता है ग्राफ का, वो ये है, ये इसको बोलते हैं स्लोप। डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं स्लोप बताऊं, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का स्लोप बताऊं, तो व्हाट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड? वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो अगर मैं एस टी ग्राफ का चेंज बताऊं, ये आपने खुद ने बोला है कि ये चेंज होता है, ग्राफ का वो फीचर जो चेंज रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं स्लोप। अगर मैं एस टी ग्राफ का स्लोप निकालूं तो वो स्लोप मुझे देता है वेलोसिटी। जैसे कि इस ग्राफ का स्लोप कितना है? क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल बना रहा है? नहीं, पैरेलल है। तो इसका स्लोप कितना है? जीरो। स्लोप जीरो होने का मतलब वेलोसिटी कितना है? जीरो। रेस्ट पर है ना भाई बॉडी तो। ठीक है, इसका स्लोप देखो, इसका पूरे ग्राफ में देखो, इस पॉइंट का चेंज स्लोप कितना है? इतना है। इस पॉइंट का स्लोप कितना होगा? इतना होगा ना। इस पॉइंट का स्लोप कितना होगा? इतना होगा। अरे स्लोप तो एक एंगल है ना, दो लाइन के बीच में एंगल कितना भी बड़ा दिखा दो रहता तो सेम ही है ना। तो देखो इन सब का चेंज सेम है, मतलब वेलोसिटी सेम है। तो ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। ठीक है, अब अगर मुझे बताना है कि भाई ये वाला यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन, दोनों में से कुछ भी बताना है तो वो ग्राफ होगा ऐसा। अब ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, उसको जज करने का क्राइटेरिया हमें पोर्शन में नहीं है। सो चिल। आप इस टाइम पर बस ये बोल सकते हो दैट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कांस्टेंट,
एंड एक्सीलरेशन में और मे नॉट बी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर पूछेगा कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्लोप निकाल के। तो इस पॉइंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, ये तो कर्व है, कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट पता है ना क्या होता है, लाइन टचिंग द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, वो स्लोप वो हो जाएगी इस पॉइंट की वेलोसिटी। जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है देखो, तो टेंजेंट बनाता हूँ, ठीक है, ये रहा टेंजेंट, देखो ये रहा टेंजेंट इस पॉइंट का, ये रहा टेंजेंट। अब इसका स्लोप देखो कितना है, इतना है। क्या ये दोनों स्लोप सेम है, नहीं। अच्छा बताओ, बॉडी यहां से यहां तक एसिलरेट किया या डेसिलरेट किया, Excellent. एक्सीलरेट किया। कैसे पता चला, छोटे स्लोप से बड़ा स्लोप, छोटे वेलोसिटी से बड़ा वेलोसिटी, वेलोसिटी बड़ी है भाई। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। आई जस्ट इरेज दिस सो दैट इट इज मोर, नहीं आई एक्चुअली लेट मी कीप दिस, ये मिटा देता हूँ खाली मैं, ठीक है, ताकि थोड़ा आप लोगों को भी ओके, ठीक है। चलो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं वीटी ग्राफ, ओके। वही तीन मोशन के लिए बनाना है, नो मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन एंड चेंजिंग वाला मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ, सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना? हाँ बेटा, ओके सर। मतलब बच्चा, तू बात तो सही बोल रहा है, लेकिन समझ कि ये देख, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये देख, एक क्वेश्चन देता हूँ तुझे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए मैं बीच में रोक के दूसरा कुछ पढ़ा रहा हूँ। समझ कि ये है 4, और ये है 10, और ये टाइम दिया हुआ है तुझे 5 सेकेंड्स। अब बता मुझे इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वेलोसिटी क्या है। पहले तो आइडेंटिफाई करो, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज हो। नहीं ना बच्चा, वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रही है, रिलेट कर। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन एज यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट का चेंज कांस्टेंट है ना, तो मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है ना। ये वाला केस हो गया ना, समझा, ठीक है। तो ये है ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी का, ठीक है। मुझे ये वेलोसिटी निकाल के दो कितनी है, कैसे निकालेंगे, देख, सुन विहान, इस पॉइंट पर है ना अपन को बेटा ये एंगल निकालना है, ये है ना बच्चा। तो तेरा जो ट्रायंगल होगा ना, वो ये होगा। तो तू जो बेसिकली बोला था ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उस फॉर्मूला में तू क्या करता, डिस्प्लेसमेंट मान लेता 10 और टाइम मान लेता 5, गड़बड़ हो जाती ना, है ना। तू बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है बताऊं, स्लोप निकालना है ना, स्लोप, स्लोप होता है tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत आइडिया है, tan cos sin पता है, नहीं पता है तो हटा देता हूँ। स्लोप होता है एक ट्रायंगल में ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये है ऑपोजिट और ये है एडजेसेंट, इस एंगल का ऑपोजिट और इस एंगल के एडजेसेंट, ठीक है। तो ये देख स्लोप ऐसे निकालते हैं, ऑपोजिट कितना है, दिस इज 10 - 4 = 6, बराबर है ना, और ये कितना है, ये है 5। सो स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू 6/5 मीटर पर सेकेंड। समझा विहान तू, तो यू हैव टू ड्रॉ ट्रायंगल्स, हाँ बच्चा, यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, आओ वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलो। वीटी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग वही तीन केस मानेंगे। सबसे पहला केस में वी कैसा होगा, टी कैसा होगा, देखो ये वी है, ये टी है, ओके। अब मैंने ग्राफ बना दिया ऐसे, ठीक है। इस ग्राफ से मुझे दिख रहा है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना है, 0, और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है,
चेंज होगा ना, अगर बॉडी के पास वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। ठीक है, यही सेम ग्राफ मैं अगले तरीके से बनाता हूं, देखो ऐसा, ये बनाया मैंने। देखो, अब बताओ ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बताओ क्या बताना चाह रहा है। आराम से देखते हैं, ठीक है। पहले तो अगर ग्राफ टेढ़ा है, पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस के, तो मतलब वो चेंज बताना चाह रहा है, ठीक है। ये ग्राफ किस चीज का चेंज बता रहा है? वेलोसिटी का चेंज बता रहा है ना। तो क्या मैं बोलूं वेलोसिटी कांस्टेंट है? चेंज हो रही ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। चेंज हो रही ना वेलोसिटी, देखो चेंज हो रही है वेलोसिटी। इस ग्राफ में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही थी, तो मैंने वेंजो कांस्टेंट बोल दिया। इस ग्राफ में वेलोसिटी चेंज नहीं पूछ रहा हूं मैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं, नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या एसिलरेशन कांस्टेंट, बॉडी में एसिलरेशन होगा ना। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एसिलरेटेड मोशन होगा, सही बात है। तो अब क्वेश्चन ये है कि एसिलरेशन कांस्टेंट है या एसिलरेशन वेरिएबल है, क्योंकि एसिलरेशन भी हमने पढ़ा था ना, दो किस्म के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन। बताओ, इस ग्राफ से आपको क्या दिख रहा है, एसिलरेशन कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? कांस्टेंट। 100% सही हो। आपने ग्राफ का वो कौन सा फीचर देखा बताने के लिए कि एसिलरेशन कांस्टेंट या चेंज हो रहा है? निकिता कम ऑन, तूने वही देख के बताया, आंसर कर। क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए। क्या यूनिफॉर्म है? मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। स्लोप, स्लोप, स्लो। स्लोप यूनिफॉर्म है। है ना। अब देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है। स्लोप क्या बताता है? चेंज। ये किस चीज का चेंज बता रहा है? वेलोसिटी का चेंज। वेलोसिटी के चेंज को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप चेंज बता रहा था, किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट के चेंज को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है? चेंज किस चीज का? वेलोसिटी का। वेलोसिटी के चेंज को क्या बोलते हैं? अब बताओ, ये स्लोप कांस्टेंट है ना ग्राफ का, तो एक्सीलरेशन इज आल्सो। समझ में आया? अगला ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो वो ऐसा होगा, ये देखो ऐसा। ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? चेंज हो रही है। चेंज हो रही है, सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब बताओ, वेलोसिटी का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है, तो मतलब एसिलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। बॉडी के पास एसिलरेशन दोनों केस में है, इसमें भी और इसमें भी। ऐसा मत समझना इस वाले केस में एसिलरेशन नहीं है इसलिए वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। इसमें जो एसिलरेशन है इस वाले केस में, वो एसिलरेशन कांस्टेंट है। कौन सा वाला? ये वाला, ये। सेम टाइम में सेम स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। और दूसरे वाले में जो एसिलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। कैसे पता चला? इस ग्राफ का इस पॉइंट पे स्लोप निकाला, ठीक है, और इस ग्राफ का इस पॉइंट पे स्लोप निकाला, दोनों स्लोप बेटा अलग अलग आया। मतलब दोनों पॉइंट पे बॉडी का एसिलरेशन अलग अलग है। समझ में आ रहा है तुमको? श्योर? सो दिस वाज ऑल द ग्राफ्स। 80 ग्राफ नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दो, इग्नोर, नॉट इन स्कोप आल्सो, बट दिस इज इट, दिस 6 ग्राफ्स कैन क्रिएट। अब इन सबको मिला दो, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ एंड आई विल वाइंड अप माय सेशन। एग्जांपल नंबर 1। ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट यू कैन नोट माय नंबर 9699680340। My name is Yash Biani. I can entertain your doubts on WhatsApp entire day. If you have any doubt, you can just WhatsApp me. By chance, if I don't reply, you can WhatsApp call me. Since many students ask me doubts, so sometimes कुछ doubts pair हो जाते हैं.
you can ask me. I can also take an evening lecture if you have doubts. I can call your doubts in that also. मैं फ्री फॉल का ग्राफ बनाना चाहता हूँ. पहले तो फ्री फॉल मतलब क्या होता है? अगर मैं तुम्हें पहाड़ पे ले जाऊं और धक्का दे दूं, तो तुम जो गिरोगे उसको बोलते हैं फ्री फॉल. ठीक है. सो अगर मैंने इस पेंसिल को यहाँ से ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया, इसको बोलते हैं फ्री फॉल. लेकिन आप जो दिवाली में वो बॉम्ब होते हैं ना, पॉप पॉप्स को जो फोड़ते हो, है ना, क्या उसको फ्री फॉल बोलोगे? नहीं. क्योंकि आप पॉप पॉप को फोड़ते टाइम पे ना ऐसे छोड़ते नहीं हो, आप अपने अंदर का पूरा एग्रेशन निकालते हो उसको. तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी दे के छोड़ते हो, आप जीरो वेलोसिटी पे नहीं छोड़ते हो. फ्री फॉल मतलब सिर्फ ग्रेविटी की वजह से फॉल हो रहा है, हमारा कोई योगदान नहीं है. अरे हाँ बोले यार, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चल फ्री फॉल का ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, एक बॉडी है, यहां से गिरी, टकराई, टकरा के वापस ऊपर आई, इसी पॉइंट पे वापस आ गई. ठीक है, तो बॉडी का मोशन कुछ ऐसा था, ऐसा टकराई और वापस टकरा के आ गई. ठीक है, तो इसका मेरे को वीटी ग्राफ बनाना है, मुझे इसका वीटी ग्राफ बनाना है. ओके, ये वीटी ग्राफ बनाता हूँ इसका, देखना, ये वी, ये टी. ओके, अब देखो, इनिशियली तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो थी, तो जीरो से शुरू करूंगा मैं भी ग्राफ को. मैंने देखा बॉडी की वेलोसिटी बड़ी 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 बड़ी, फिर एक पॉइंट के बाद में बॉडी की वेलोसिटी वापस से थी उतनी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया. बॉडी टकराई, टकराने के बाद में वेलोसिटी जो नीचे की तरफ पॉजिटिव थी, वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी? नेगेटिव. तो अब वेलोसिटी इस पर्टिकुलर टाइम पे इधर से, और फिर धीरे 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 वेलोसिटी वापस कम हो रही है, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो स्पीड कम हो रही है ना. तो ये देखो, कम होके वापस जीरो हो जाएगी. दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फ्री फॉल. ठीक है, आई इनवाइट यू टू मेक वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अपवर्ड थ्रो. किसी बॉडी को ऊपर फेंका और वापस से हाथ में पकड़ा, एंड यू कैन व्हाट्सएप मी योर आंसर, आई कैन गाइड यू राइट और रॉन्ग. I invite you to do that. Just take care of positive velocity and negative velocity. Okay. So I think you are students from St. John, right? Yeah. So are you looking after our material? देख रहे हो आप लोग? Are they some sort helping you? Yeah. You want more question papers for motion in 1D? You can message me. I can provide you more question papers. Anyways, you were fantastic students here. I enjoyed my 1 hour. I hope you take some physics out of me today. Chalo guys, see you soon. Tada. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Bye, Yes, sir. sir. Bye. Bye.